Hello student, this is part 11 of molecular basis of inheritance. In this part, we will discuss about the DNA fingerprinting. DNA fingerprinting, also known as DNA profiling. Alec Jeffreys in 1984 invented the DNA fingerprinting technique at Leicester University, United Kingdom. Dr. V.K. Kashyap and Dr. Lalji Singh started the DNA fingerprinting technology in India at CCMB, Hyderabad. Next is, what is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting is a technique of determining nucleotide sequences of certain areas of DNA which are unique to each individual. Each person has a unique DNA fingerprint. This is the ideal way to distinguish an individual from other people would be his or her entire genomic DNA sequence. Actually, principle of DNA fingerprinting is that about 0.1% or 3 into 10 raised to power 9 6 base pairs out of 3 into 10 raised to power 9 base pairs are present in non-coding region. These are the non-coding DNA. This DNA is repeated many times and forms a stretch of DNA known as VNTR, variable number of tandem repeats. They are also known as mini satellites. This VNTR are unique to each individual. The variation in this variable number of tandem repeat is the cause of variation is the mutation. Over the time, mutation takes place in these sequences, and that's why these sequences are different in different individuals. Because these sequences, they do not code any protein, so there is no impact on the individual because of the mutation. So these DNA which are present in non-coding region and repeated many times, and these repeats are number of repeats are different in different individual. That's why known as variable number of tandem repeats, and these are called mini satellites. We prepare DNA fingerprint of these sequences to identify a particular person because these sequences are unique to each individual. Next is the methods of DNA fingerprinting. First of all, the DNA is extracted from the nuclei of white blood cells or spermatozoa of hair follicle, etc. कोई भी ऐसा सेल जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहाँ से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेप है, इट इज़ द आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए from the nucleus of a cell. Second, the DNA molecules are first broken with the help of restriction enzyme that cuts the DNA into fragments. These fragments of DNA also contain variable number of tandem repeats. When we cut, this is the DNA that we have isolated from the nuclei of a cell, then they are cut with the help of these restriction enzymes. When we cut these restriction enzymes, we get DNA fragments of different length, and these are called RFLPs.
RFLP means restriction fragment length polymorphism, because we have cut the DNA with these restriction enzyme, and after that we get DNA of different length. Next is the sorting of DNA pieces by size. It is done by gel electrophoresis. By electrophoresis, we can separate these fragments of DNA according to their size, because DNA are negatively charged. Negatively charged. This is a tank in which agarose gel is filled, and these DNA fragments are loaded in the agarose gel. When we pass the current, this is negative electrode and positive electrode are here. When we load the DNA at this position, the DNA start moving towards because they are negatively charged, they start moving towards the oppositely charged electrode. The DNA moves faster, which are smaller in size, and the DNA which are longer in size, they left behind. So they are separated according to size. क्योंकि जो बड़े साइज़ के हैं वो स्लो मूव करेंगे, इसलिए पीछे रह जाएंगे, और जो छोटे साइज़ के DNA हैं वो आगे निकल जाएंगे क्योंकि उनका साइज़ छोटा है. तो दे आर सेपरेटेड. क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे RFLP मिले थे जो अलग अलग साइज़ के थे. इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से हम DNA को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं. बड़े साइज़ का क्योंकि वो हैवी होता है, स्लो मूव करेगा, इसलिए पीछे रह जाएगा. छोटे साइज़ के जो DNA हैं वो फास्ट मूव करते हैं, इसलिए दे विल मूव फास्टर एंड रीच द अपोजिट एंड ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक. Next is the fragments of particular size having VNTRs are amplified through PCR. अब जो हमें फ्रैगमेंट्स मिला है, इन फ्रैगमेंट्स को हम PCR के थ्रू एम्पलीफाई कर लेते हैं. PCR एक टेक्निक है. अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA है या सैंपल है, उसको हम कई गुना ज़्यादा कॉपी उसकी बना सकते हैं बाय PCR टेक्निक. PCR टेक्निक हम बाद के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है. These fragments, which were separated by electrophoresis and present in agarose gel, they are treated with alkali. किसी भी अल्कलाइन केमिकल से इसको ट्रीट किया जाता है, जिससे जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, दे आर स्प्लिट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. क्योंकि जो DNA हमने आइसोलेट किया था वो डबल स्ट्रैंडेड है, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको सेपरेट किया. जब ये डबल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाते हैं तो इनको अल्कलाइन केमिकल से ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से वो डीनेचर हो जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड DNA सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाते हैं. द सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA आर ट्रांसफर्ड ऑनटू ए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है और नीचे ये एग्रोज जेल है जिसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए DNA को सेपरेट किया है. इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को इस एग्रोज जेल के ऊपर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ये DNA इस जेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. इसके बाद रेडियो एक्टिव DNA probes having repeated base sequences complementary to the VNTRs. हमारे पास ऐसे रेडियो एक्टिव DNA सीक्वेंसेस होते हैं. प्रोब्स का मतलब है कि वो DNA सीक्वेंसेस जिसको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया गया है, और जो VNTR का सीक्वेंस है इसका कम्प्लीमेंट्री प्रोब हम बनाते हैं और इस DNA प्रोब्स को इन VNTRs के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है. कम्प्लीमेंट्री DNA प्रोब्स कम्प्लीमेंट्री VNTR
यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड होता है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए पाया जाता है। ये टेक्निक E.M. सदर ने 1975 में डिस्कवर की थी और इसीलिए इसको सदर्न ब्लॉटिंग भी कहते हैं। नाउ द नायलॉन मेम्ब्रेन इज वॉश टू रिमूव द एक्स्ट्रा प्रोब। नायलॉन मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है, इट कैन बाइंड ओनली टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि जब हमने इसकी ब्लॉटिंग की थी यानी डीएनए को हमने जब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को जब एग्रोज जेल के ऊपर रखा था तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स ऐड किया जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स कम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड वीएनटीआर से हाइब्रिडाइज होते हैं, तो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है। एक ओरिजिनल डीएनए है जिसे हमने सेपरेट किया था, दूसरा एक आर्टिफिशियल डीएनए प्रोब है जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस से हाइब्रिडाइज हो जाता है। अब इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को वॉश किया जाता है। जितना भी अनबाउंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब है, दे आर वॉश्ड आउट, ये यहाँ से अलग हो जाते हैं। An X-ray film is exposed to nylon membrane to mark the places where radioactive DNA probes have bound to the DNA fragments. These places are marked as dark bands when X-ray film is developed. This is called autoradiography. The dark bands on the X-ray film represent the DNA fingerprints. नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऑटो रेडियोग्राफी है। ऑटो रेडियोग्राफी में हम एक एक्सरे फिल्म को नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर रखते हैं, क्योंकि नायलॉन मेम्ब्रेन में हाइब्रिड प्रेजेंट है, ऐसा डीएनए प्रेजेंट है जो प्रोब से अटैच्ड है। प्रोब एक रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं। जब एक्सरे प्लेट को हम इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में लाएंगे तो वहाँ पर कुछ बैंड्स फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पर कुछ जो लाइट एमिट होती है उसके वजह से एक्सरे प्लेट के ऊपर या एक्सरे फिल्म के ऊपर कुछ स्पॉट्स नज़र आते हैं, जैसे यहाँ पर है। इन स्पॉट्स को हम बैंड्स कहते हैं और इन्हीं बैंड्स को हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। Next is the practical application of DNA fingerprinting. First is the solving cases of disputed paternity and maternity. बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पैटर्निटी या मैटर्निटी क्लेम किया जाता है, यानी कोई एक चाइल्ड है, ये पता करना होता है कि कौन इसके फादर हैं कौन इसके मदर हैं। तो वहाँ पर तीनों यानी चाइल्ड, जो फादर है और जो मदर है, इनके डीएनए को आइसोलेट किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, क्योंकि हर चाइल्ड के अंदर जो VNTRs हैं 50% VNTR फादर से आते हैं, 50% VNTR मदर से आते हैं। तो फादर और मदर के 50% VNTR चाइल्ड से मैच करते हैं। अगर ये चाइल्ड से मैच करते हैं तो वो उनके रियल पेरेंट्स होंगे। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम पैटर्निटी और मैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। Criminal identification and forensic. DNA isolated from blood, hair, skin cells or other genetic evidences left at the scene of crime can be compared through VNTR pattern with DNA of criminal suspect to determine guilt or innocence. सीन ऑफ क्राइम से कोई क्राइम होता है तो सीन ऑफ क्राइम से अगर हमें ब्लड मिल जाता है
या हेयर मिल जाता है या स्किन के सेल्स मिल जाते हैं, तो उससे डीएनए को आइसोलेट किया जाता है और जो भी सस्पेक्ट्स हैं, जो भी क्रिमिनल सस्पेक्ट्स हैं, उनके डीएनए से मैच किया जाता है। अगर ये मैच हो जाते हैं तो ये डिसाइड हो जाता है कि दे आर गिल्ट और इनोसेंस, कि इन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। The notion of using DNA fingerprints as a short genetic barcode to identify individuals has been discussed, but this is not likely to happen anytime in the near future because this technique is very expensive. ये किया जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बारकोड में कन्वर्ट करके किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के लिए इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये टेक्निक्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और तो अभी ये नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को एक बार हम फिर देख लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस या सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है इट इज़ टू कट दिस डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको हम कट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग साइज़ के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। इन फ्रैगमेंट्स को हम RFLPs कहते हैं। यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी हमें अलग अलग लेंथ के यहाँ पर फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं। फिर इन फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है डीएनए के ऊपर, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जब करंट पास किया जाता है तो डीएनए इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट है ये डिपेंड करता है कि डीएनए का साइज़ क्या है। जो लार्ज साइज़ डीएनए हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो स्मॉल साइज़ डीएनए हैं वो तेज़ मूव करते हैं और ये आगे की तरफ। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद ब्लॉटिंग की जाती है। ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को इस जेल के ऊपर रखा जाता है और इसके ऊपर कुछ ब्लॉटिंग पेपर और वेट रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए यहाँ पर है, डीएनए फ्रैगमेंट्स यहाँ पर हैं, ये इस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस पर ट्रांसफ़र होने के बाद इसको एक अल्काली से ट्रीट किया जाता है, अल्कलाइन केमिकल से ट्रीट किया जाता है, जिससे ये डीएनए डीनेचर हो जाते हैं। और इन डीनेचर डीएनए को फिर प्रोब के साथ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करवाया जाता है। जहाँ भी कम्प्लीमेंट्री VNTRs होंगे, टैंडम रिपीट्स होंगे, वहाँ पर ये प्रोब उनसे अटैच हो जाएगा। और इसके बाद इस नायलॉन मेम्ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है, क्योंकि नायलॉन मेम्ब्रेन पे सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही परमानेंटली अटैच हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड अटैच नहीं होते हैं। इसलिए वॉश करने से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। इसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। ऑटो रेडियोग्राफी में एक्सरे फिल्म को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर रखा जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोब के रेडिएशन की वजह से यहाँ पर कुछ बैंड्स नज़र आते हैं और ये बैंड्स को ही हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहते हैं।